دور دراز سے اور اسٹیج کی رونق بننے والے علماء کرام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جو لوگ اس بستی سے چل کر جو ہے اس پنڈال میں تشریف فرما ہے ان کا بھی ہم خیر مقدم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں۔ بھائی بہت دنوں سے جو ہے پونے 2 مہینے ہو گئے برابر جو ہے اس جلسے کی تیاری چل رہی تھی۔ الحمدللہ آج وہ دن دیکھنے میں آیا ہے کہ جس کی ہمیں مدتوں سے جو ہے ایک لگن لگ رہی تھی، آج وہ دن آیا ہے۔ آواز تو ساتھ نہیں دے رہی، لیکن یہ اس خوشی کے موقع پر دین کی مجلس میں میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میرا بھی کچھ حصہ ہو جائے۔ جی آپ جب نبوت کا آپ جب نبوت کا معجزہ دکھاتے ہیں، آپ جب مشرکوں کی محفل میں ایک عجیب ہلچل ہے، مشرکوں کی محفل میں ایک عجیب ہلچل ہے، مشرکوں یہ بھی ایک کرشمہ ہے، جو ختم تب کرے گا، یہ بھی ایک کرشمہ ہے، جو ختم تب کرے گا، دودھ بلا جاتا جب لگا تو بلا جاتا ہے، ہاتھ جب لگا آپ جب نبوت کا معجزہ دکھاتے ہیں، کیسے دھوپ میں چلتے ساتھ ساتھ سایہ کرتے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ۔
ہر غم و آلام سے اس کی رہائی ہو گئی، ہر غم و آلام سے اس کی رہائی ہو گئی، سرکار مدینہ تک جس کی رسائی ہو گئی۔ رسول پور والوں نے اتنا نوازا آپ کو، 4-5 دن کام چلائیں گے اتنی کمائی ہو گئی، ماشاءاللہ۔ آئیے حضرات سامعین، ہم سیدھے سیدھے میدان خطابت میں قدم رکھتے ہیں۔ ہمارے معزز مہمان یہ کہیے کہ جو بات دوا سے ہو نہ سکی، جو بات دوا سے ہو نہ سکی وہ بات دعا سے ہوتی ہے، جو بات دوا سے ہو نہ سکی وہ بات دعا سے ہوتی ہے، جب مرشد کامل ملتے ہیں پھر بات خدا سے ہوتی ہے۔ جامعہ اسلامیہ تاج پورہ سے تشریف لائے ہمارے معزز مہمان حضرت مولانا مفتی محمد جمشید صاحب دامت برکاتہ عالیہ، محترم جامعہ اسلامیہ۔ اللہ رب العزت نے حضرت کو جہاں علم سے نوازا ہے وہیں حسن اخلاق سے بہترین نمونہ ہے۔ آپ جا کر کے آپ کے یہاں کے طلباء، ہمارے علاقے کے طلباء جامعہ اسلامیہ تاج پورہ میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، آپ بخوبی جانتے ہیں۔ ایک شریف الطبع انسان اللہ رب العزت حضرت کے مردراز فرمائے۔ نہایت ہی ادب احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں حضرت مولانا محمد جمشید صاحب دامت برکاتہ عالیہ سے حضرت تشریف لائیں اور اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہم سامعین کو نوازیں۔ الحمدللہ ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں، المدینہ ٹور سے جو تعلق رکھتے ہیں حاجی شمشیر صاحب، ہم ان کا دل کی گہرائیوں سے، دل کے نہا خانوں سے اہلاً و سہلاً مرحبا خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائے۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الناس كلهم هالكون إلا العالمون والعالمون كلهم هالكون إلا العاملون والعاملون كلهم هالكون إلا المخلصون والمخلصون على خطر عظيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حضرات اور عزیز سامعین کرام، ابھی اعلان فرمایا میں مفتی نہیں ہوں، ایک خادم ہوں جامعہ اسلامیہ کانپور کا، اور کوئی بڑا مقرر بھی نہیں ہوں، میں خدمت انجام دے رہا ہوں۔ 2-4 باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بے شمار انعامات، بے شمار احسانات کیے ہیں۔ اس وقت سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس مبارک اجلاس میں شرکت کا موقع عنایت فرمایا، تو ہم کو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ یہاں جو آپ تشریف لائے ہیں اطمینان سکون کے ساتھ تشریف فرما رہے ہیں، باتیں نہ کریں، کھڑے نہ رہیں، توجہ کے ساتھ جو کچھ بعد میں آنے والے حضرات علماء کرام ہیں ان کی باتیں سنیں۔ یقین کے وقت ہے، رات کا وقت، اس کو اس طرح نہیں گنوانا چاہیے۔ جس مقصد سے یہاں تشریف لائے ہیں وہ مقصد حاصل کرنا چاہیے۔ اطمینان سکون کے ساتھ دی ہوئی باتیں سنیں اور اس نیت سے سنیں کہ ہم جو بھی سنیں گے اس پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان دینی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، ایک دنیا، ایک عالم تو یہ ہے جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس کے بعد ایک دوسرا عالم آنے والا ہے جس کو عالم آخرت کہتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس عالم میں، اس دنیا میں 2 طرح کی چیزیں پیدا کی ہیں، کچھ آرام و راحت پہنچانے والی چیزیں ہیں، کچھ تکلیف پہنچانے والی چیزیں ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بھی دونوں طرح کی چیزیں پیدا کی ہیں۔ آرام و راحت والی چیزیں جتنی بھی ہو سکتی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے
जन्नत में मुहैया और तैयार किया। तकलीफ पहुंचाने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो सब अल्लाह ताला ने जन्नत में उनको जमा किया है। असल जो आराम और राहत है वो आखिरत वाला आराम और राहत है, और जो तकलीफ़ है असल वो आखिरत वाली तकलीफ़। दुनिया में जो अल्लाह ताला ने आराम और राहत पैदा किया है, आराम और राहत पहुंचाने वाली चीज़ें पैदा की हैं, ये जन्नत में जो कुछ मैसर होगा उसके सामने सब हेज। जन्नत में क्या पैदा किया है अल्लाह ताला ने? कुरान पाक में वलकुम फ़ीहा मा तशतही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तदउन। जो भी तुम कुछ चाहते हो कि हमें अच्छा खाना चाहिए, अच्छी बीवी चाहिए, अच्छी बिल्डिंग चाहिए, अच्छा मकान चाहिए, वो सब चीज़ें वहाँ मुहैया तैयार है। जहन्नम में क्या है, वहाँ क्या तकलीफ होगी? कुरान पाक में फरमाया गया है कुल्लमा नज़ियत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा। जब जहन्नम में डाला जाएगा इंसान को तो वहाँ जल का मामला ख़त्म नहीं होगा। जब जब भी खाल जलती रहेगी, गोश्त जलता रहेगा, अल्लाह ताला नई खाल और नया गोश्त पैदा फरमाते रहेंगे। तो इसलिए हम सबको चाहिए कि हम वो आमाल करें जिन आमाल की बुनियाद पर हमारी आखिरत बने। वो आमाल क्या हैं? अभी मैंने हदीस तिलावत की है, इसमें अल्लाह ताला ने वो बातें बयान की हैं, वो खुलासा बयान किया है जिसके ज़रिए हमारी आखिरत बनेगी। क्या है वो? फरमाया अन्नासु कुल्लुहुम हालिकून इल्लल आलिमून। दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो सब हिलाक होने वाले हैं, खसारे और टोटे में हैं। अगर बचने वाले हैं तो अहले इल्म बचने वाले हैं। मतलब ये है कि ज़रूरत के मुताबिक इल्म दीन हासिल करना ये सबसे पहले ज़रूरी है। दूसरी चीज़ें बात की हैं, बाकायदा आलिम बनना, मुफ्ती बनना, काजी बनना वो फ़र्ज़ नहीं है। ज़रूरत के मुताबिक इल्म दीन हासिल करना ये फ़र्ज़ आइन है। जैसे नमाज फ़र्ज़ आइन है, रोज़ा फ़र्ज़ आइन है, इसी तरह ज़रूरत के मुताबिक इल्म दीन हासिल करना ये फ़र्ज़ आइन है। फरमाया आका नामदार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा। ज़रूरत के मुताबिक इल्म हासिल करना ये हर मुसलमान मर्द औरत पर ज़रूरी है। अब हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, नमाज में कुछ फ़राइज़ हैं, कुछ वाजिबात हैं, कुछ सुन्नतें हैं। फ़र्ज़ छूट जाता है नमाज में तो नमाज नहीं होगी, दोबारा पढ़नी होगी। वाजिब फौत हो गया से भूले से तो सजदा सौ से तलाश हो जाएगी, नहीं सजदा सौ करेंगे तो दोबारा नमाज अदा करना वाजिब होगा। सुन्नत फौत हो गई, नमाज हो जाएगी लेकिन उसमें भी कुछ कराहत आएगी। अब एक आदमी को मालूम ही नहीं कि नमाज में फ़राइज़ क्या हैं, कितने हैं, वाजिब कौन कौन हैं, वाजिबात क्या क्या हैं, सुन्नतें क्या हैं, उसके नज़दीक सब बराबर है। उसे पता नहीं चलेगा कि मुझसे वाजिब फौत हुआ या फ़र्ज़ फौत हुआ। तो इसलिए ज़रूरी है बात कि हम इतना इल्म ज़रूर हासिल करें, बच्चों को इतना इल्म ज़रूर हासिल कराएं जिससे हलाल हराम की तमीज़ हो जाए, नमाज पढ़ना आ जाए और दीगर जो मोटे मोटे मसाइल हैं उनसे वाक़िफ़ हो जाए। क़यामत में जहाँ और सवालात होंगे और हिसाब किताब होगा, वहीं ये भी सवाल होगा कि आपने अपने बच्चों को दीनी तालीम क्यों नहीं दिलाई। तो इसलिए हम सबको चाहिए, माशाअल्लाह आपके गांव में मदरसा कायम है, इसकी कदर करनी चाहिए और बच्चों को यहाँ भेजना चाहिए। ज़रूरी बातें कम से कम थोड़ा बहुत इल्म जो हमको ज़रूर दिलाना चाहिए। तो अन्नासु कुल्लुहुम हालिकून इल्लल आलिमीन। तमाम इंसान खसारे और टोटे में हैं, बचने वाले हैं तो अहले इल्म बचने वाले हैं। आगे फरमाया गया है वल आलिमून कुल्लुहुम हालिकून इल्लल आमिलून। आलिम भी सब हिलाक होने वाले हैं, खसारे और टोटे में हैं। बचने वाले हैं तो वो हज़रात बचने वाले हैं जो इल्म के साथ साथ अमल करने वाले हैं। तो पहले इल्म ज़रूरी है, फिर इल्म के साथ साथ अमल ज़रूरी है। हदीस पाक के अंदर आता है कि आका नामदार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में तशरीफ़ ले गए तो 7वें आसमान पर जो बैतुल मामूर है, फरिश्तों का काबा है, ये बैतुल्लाह के बिलमुकाबिल 7वें आसमान पर है।
70,000 फरिश्ते उसका रोज़ाना तवाफ़ करते हैं, जिसका एक मरतबा नंबर आ जाएगा ता क़यामत उस फरिश्ते का फिर दोबारा नंबर नहीं आएगा। तो इससे अंदाज़ा हो जाता है कि अल्लाह ताला के ये मखलूक फरिश्ते हैं, उनकी शुमार और तादाद कितनी है। तो 7वें आसमान पर बैतुल मामूर से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम टेक लगा हुए बैठे थे। उनसे मुलाकात हुई आक़ाए नामदार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सलाम कलाम के बाद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब आप वापस तशरीफ़ ले जाएं तो अपनी उम्मत को मेरा सलाम कहना और उनको बतला देना कि अल-जन्नत क़याम, जन्नत के अटल मैदान है, वहाँ तुम्हारे लिए कोई आराम और राहत की चीज़ मुहैया और तैयार नहीं है। जैसे जैसे तुम नेक अमाल करोगे उन अमाल की बुनियाद पर वहाँ तुम्हारे वास्ते तरह तरह की आराम और राहत की चीज़ें तैयार होंगी। कुछ भी नेक अमल नहीं करेंगे तो तुम्हारे हक में चटल मैदान है। तो इसलिए इल्म के साथ साथ अमल ज़रूरी है। हदीस पाक के अंदर आता है इंसान नेक अमल करना शुरू करता है, उस अमल की बुनियाद पर जन्नत में उसके लिए महल तैयार होना शुरू हो जाता है, काम लग जाता है। काम होते होते दरमियान में रुक जाता है। फरिश्ते मालूम करते हैं क्या बात है, काम क्यों रुक गया। बतलाते हैं क्योंकि वजह इसकी ये है कि जिस अमल की बुनियाद पर यह काम चल रहा था, उसके लिए यहाँ बिल्डिंग महल तैयार हो रहा था, उसने वो काम रोक दिया, वो काम करना मौकूफ़ कर दिया। मतलब ये है कि जितने हम नेक अमाल करेंगे उन्हीं अमाल की बुनियाद पर हमारे लिए वहाँ महलात भी तैयार होंगे और आराम और अपनी चीज़ें भी हो सकती हैं, वो सब वहाँ मुहैया और तैयार होंगे, नहीं तो हमारे हक में और चटल मैदान। तो इसलिए इनके साथ साथ अमल ज़रूरी है और अमाल में सबसे अहम नमाज है। नमाज उम्मुल इबादत है। हदीस पाक के अंदर आता है, फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अस्सलातु बुरहानुन, नमाज हुज्जत है, दलील है। क्या की दलील है? ईमान की दलील है। ईमान जो है वो एक मख्फी चीज़ है, उसका ताल्लुक दिल से है। कैसे पता चलेगा कि फलां में मोमिन है, मैं मोमिन हूँ, फलां मोमिन है? उसकी दलील जो है वो नमाज है। नमाज के ज़रिए इंसान ये बतलाता है कि मैं मोमिन हूँ। एक हदीस के अंदर आता है कि कुल्लि शैइन आलमुन व आलमुल ईमान या सलात, हर चीज़ की निशानी अलामत होती है, ईमान की निशानी और अलामत नमाज है। और भी अमाल है, रोज़ा भी है, ज़कात भी है, हज भी है, लेकिन इंसान उनको रोज़ा नहीं करता है। हज उम्र भर में एक मरतबा होता है फ़र्ज, रोज़े एक महीने में फ़र्ज होते हैं। रोज़ाना का जो अमल है जिसके ज़रिए इंसान ये सामने सबूत दे और अपने बारे में लोगों के सामने इस बात का इजहार करे कि मोमिन हूँ, नमाज। इसलिए नमाज उम्मुल इबादत है, अमाल में सबसे अहम है। इसलिए हम सबको चाहिए कि पाबंदी से हम बाजमात नमाज अदा करने की कोशिश करें। फिर नमाज में एक खासियत ये है, कुरान पाक में है, इन्न सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर। जो इंसान हकीकत में नमाज पढ़ता है, तमाम फ़राइज़ वाजिबात सुनन की रियायत रखते हुए, तो अल्लाह ताला उसको फहश बातों से, बुराइयों से, गुनाहों से रोक देते हैं। इसमें अल्लाह ताला ने ताकीद रखी है, इन्न सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर। नमाज इंसान को फहश बातों से, बुराइयों से, गुनाहों से रोकती है। अब कहीं फलां आदमी नमाज पढ़ता है, वो तो चोरी भी कर रहा है, फला काम भी कर रहा है, फला काम भी कर रहा है। तो हकीकत यह है कि जिस तरह नमाज पढ़नी चाहिए, जिन आदाब की रियायत करके नमाज पढ़नी चाहिए, वो उस अंदाज पर नमाज नहीं पढ़ रहा है। कुरान पाक की आयत गलत नहीं हो सकती है। कुरान पाक में है, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद व मन असदक़ु मिनल्लाहि क़ीला। अल्लाह ताला ने जो बात कह दी है वो अटल है। अल्लाह ताला वाला खिलाफ नहीं करते हैं। जो कुछ कुरान पाक के अंदर मौजूद है वो बरहक है, हमारी नमाज में कोताही है। तो इसलिए नमाज पहले सीखनी चाहिए, नमाज के फ़राइज़ क्या हैं, वाजिबात क्या हैं, सुनन क्या हैं, और फिर उनके मुताबिक इख्तिलाफ के साथ नमाज अदा करनी चाहिए। अल्लाह ताला इस नमाज की बरकत से हमको गुनाहों से बचा लेंगे। वाक़या सुना होगा आपने, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की दौर खिलाफत में एक शख्स एक औरत पर आशिक हो गया, बार बार चक्कर लगा रहा उधर, किसी तरह से काम बन जाए। जब मामला हद से बढ़ गया
तो उसने पैगाम भेजा उस औरत के पास कि मेरा ये इरादा है। उसने शर्त लगा दी कि ठीक है, तुम्हारा पैगाम मंजूर है, हमारी शर्त यह है कि तुम 40 दिन तक जो खलीफा वक्त हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके पीछे तकबीर औला के साथ नमाज अदा करो। सोचा तो बहुत आसान काम है, नमाज पढ़नी शुरू कर दी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, नमाज पढ़ता गया, उधर से ध्यान हटता गया। जब 40 दिन पूरे हो गए तो उस औरत ने आजमाने के लिए इत्तला भेजी कि क्या बात है, अब तो तुमको नसीब भी नहीं लाते। फरमाया कि मेरा इरादा बदल गया है और मैंने तौबा कर ली। तो नमाज का ऐसा हुआ कि अल्लाह ताला ने उसको उस गुनाह से बचा लिया। हकीकत यह है कि इंसान सही माने अगर नमाज अदा करेगा, नमाज बन जाए, तो जिन दीगर जो गुनाह हैं उनसे बचता चला जाएगा। तो इसलिए हम सबको चाहिए पाबंदी से इखलास के साथ नमाज अदा करें। आगे फरमाया गया है वल आमिलून कुल्लुहुम हालिकून इल्लल मुखलिसून। इल्म भी है, अमल भी है, ये सब हिलाक होने वाले हैं। इल्म हासिल किया, फिर अमल भी कर रहा है, फिर भी हिलाक होने वाले हैं। अगर बचने वाले हैं तो हज़रात बचने वाले हैं जिनका अमल इखलास के साथ है। तो इल्म भी होना चाहिए ज़रूरत के मुताबिक, फिर अमल होना चाहिए, अमल में इखलास होना चाहिए। अमल में जितना ज़्यादा इखलास होगा उसमें उतना ही ज़्यादा वज़न होगा और इंदल्लाह उतना ही वो अमल मकबूल होगा। इखलास का मतलब ये है कि हम जो भी अमल करें वो महज अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी लेकर करें। हज़रत इमाम अबू दाऊद एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुज़रे हैं जिन्होंने अबू दाऊद एक बहुत बड़ी किताब लिखी है जो मदारिस में पढ़ाई जाती है। उनके बारे में आता है कि वो एक समंदर के किनारे पर तशरीफ़ फरमा था। अंदर एक जहाज खड़ा हुआ था, उसमें एक शख्स को छींक आ गई। अब छींक पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, सुनने वाले को यरहमुकल्लाह कहना चाहिए। तो जिसको छींक आई थी उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। इनके दिल में दाया पैदा हुआ कि जवाब देना चाहिए, यरहमुकल्लाह कहना चाहिए। इन्होंने एक छोटी कश्ती किराए पर की और कश्ती किराए पर करके उनके पास तशरीफ ले गए और जब उनको जवाब दिया यरहमुकल्लाह, तो गैर से आवाज़ आई कि अबू दाऊद आज तुमने इस अमल के ज़रिए जन्नत खरीद ली। मामूली सा अमल है, जी का जवाब, लेकिन उसमें इखलास हद दर्जे था। इससे पहले उन्होंने अबू दाऊद जैसी किताब लिखी, ना मालूम कितने नेक अमाल किए, उन पर एक खुशखबरी नहीं सुनाई गई। इस मामूली सभा इन पर यरहमुकल्लाह कहने पर यह खुशखबरी सुना गई कि तुमने जन्नत ले ली। इसमें इंतहाई दर्जे इखलास था। तो इसलिए हम जो भी अमल करें उसमें रिया नमूद दिखावा नहीं होना चाहिए, इखलास होना चाहिए। आगे है वल मुखलिसून अला खतरिन अज़ीम। इल्म भी है, अमल भी है, अमल भी इखलास के साथ है। अब भी ख़तरा है। अब नज़र अल्लाह ताला के फज़ल व करम पर होनी चाहिए कि मैंने इल्म भी हासिल किया, अमल भी किया, अमल भी इखलास के साथ किया। जब तक कि अल्लाह ताला का फज़ल व करम शामिल हाल नहीं होगा उस वक्त तक जो है बेड़ा पार नहीं होगा। तो इसलिए इल्म के साथ साथ अमल और अमल इखलास के साथ हो, फिर नज़र अल्लाह ताला के फज़ल व करम पर हो। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। आखिरी बात यह है कि दीनी मदारिस दीन के किले हैं। उन्हीं मदारिस में से आपका एक मदरसा है। इन मदारिस की हिफाजत करनी चाहिए, निगरानी करनी चाहिए, इनका ताउन करना चाहिए। जितने भी अपने अंदर हिम्मत है, ये ना सोचें कि हमारे पास तो 500 रुपये नहीं है, 1000 रुपये नहीं है, पैसे से इनका ताउन करेंगे। आपके पास 10 रुपये हैं तो 10 ही रुपये से ताउन करें। आज ही मैंने एक हदीस पढ़ाई थी तिरमिज़ी शरीफ में, उसमें आया है कि आप फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो शख्स अपनी पाक कमाई में से कोई सदका करता है, खैरात करता है, अल्लाह ताला के रास्ते में देता है, अगर कि वो एक खजूरी हो, एक छुआरा है, उसी को दे रहा है, तो अल्लाह ताला उसको बढ़ाते रहते हैं और बढ़ाते बढ़ाते उसको वो बहुत पहाड़ से भी बड़ा हो जाता है। उसका सदका ये खजूर दी है उसने, लेकिन इखलास के साथ दी है, अल्लाह ताला की खुशनुदी की नीयत है और हलाल कमाई से दी है, तो अल्लाह ताला उसको इतना बढ़ाते हैं कि वो पहाड़ से बड़ा हो जाता है।
और मिसाल फरमाई आपने कि जैसे तुम में से कोई आदमी घोड़ी का जो बच्चा होता है, घोड़ी के बच्चे की परवरिश करता है, होते होते बड़ा हो जाता है, वो घोड़ा बन जाता है, घोड़ी बन जाती है। या ऊँटनी का बच्चा होता है, उसकी परवरिश करता है, वो बड़ा हो जाता है। इसी तरह अल्लाह ताला उस बुजुर्ग को, उस सारे को बढ़ाते हैं और बढ़ाते बढ़ाते बहुत पहाड़ के बराबर कर देते हैं। तो इसलिए जो आज आप तशरीफ़ लाए हैं, मदरसे का ताउन करके वापस तशरीफ़ ले जाएँ। अगर किसी के पास 10 ही रुपये हैं, 10 की हिम्मत है तो 10 ही अदा कर 10 से ताउन करें। ज़्यादा जितनी भी हिम्मत है अपनी हिम्मत के मुताबिक जो है यहाँ मदरसे का ताउन फरमा कर तशरीफ़ ले जाएँ। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। और आखिर माशाअल्लाह आप थे हज़रत मौलाना जमशेद साहिब दामत बरकातुहू, अपनी कीमती नसीहतों से सामीन को नवाज रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो बातें कही गई उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए हज़रात सामीन, मैं आपको बतला दूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस गाँव के अंदर वो तमाम ही उलमाए कराम कि जिनका नाम आपने इश्तिहारात के ज़रिए या ऐलानात के ज़रिए सुना था, अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस गाँव में तशरीफ़ ला चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत अलहाज क़ारी मोहम्मद सईद अहमद साहिब नाज़िम जामिया सुमैया के राजपुर हज़रत तशरीफ़ ला चुके हैं। और इसी तरीके से हज़रत मौलाना शमशाद साहिब नाज़िम मदरसा कासिम उलूम गागामेडी हज़रत की तशरीफ़ ला चुके हैं। इसी तरीके से जनाब प्रधान हाजी मोहम्मद इंतज़ार साहिब, साहबजादा मोहतरम प्रधान मोहम्मद जुनैद साहब और इसी तरीके से ठेकेदार मोहम्मद शहजाद साहिब वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जनाब क़ारी तनवीर आलम साहिब जो आपके यहाँ एक अरसे दराज से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हज़रत क़ारी साहब के उस्ताद मोहतरम जिनके पास रहकर हज़रत क़ारी साहब ने तरबियत पाई, मदरसा काशिफ उलूम छुटमलपुर हज़रत के उस्ताद मोहतरम जनाब क़ारी मोहम्मद फ़ुरक़ान साहिब काशिफ उलूम छुटमलपुर से तशरीफ़ ला चुके हैं। इसी तरीके से काशिफ उलूम से हज़रत मौलाना अब्दुल रहमान साहिब दामत बरकातुहू, मज़ाहिर उलूम सहारनपुर से क़ारी मोहम्मद ताहिर साहब दामत बरकातुहू, इसी तरीके से हज़रत मौलाना लुकमान साहिब जो कि इमाम ख़तीब हैं रसूलपुर के अंदर ही, और इसी तरीके से मुफ्ती अहमद साहिब इमाम रसूलपुर हज़रत भी तशरीफ़ रखते हैं। हज़रत मौलाना मोहम्मद नईम साहिब दामत बरकातुहू तशरीफ़ रखते हैं। और इसी तरीके से एक बहुत बड़ा नाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिनको बड़ी